Good morning, all of you. Welcome you all in IIFL webinars. Today we are going to conduct a webinar on technical analysis. As you know, technical analysis is a very important part for while trading, while investing, because it's a very easy to use. However, traders are using this technical tools since inception and getting a very good result. So technical analysis is a product where you can use stocks, which you can use this product on any kind of stock, any kind of commodity, any kind of security. So today, for this perspective, we are going to conduct a webinar on technical analysis. So I am Anuj Gupta, and I am taking care here VP Research and taking care of the research part for the commodity and currency. However, technical analysis is used in all the asset class. It might be equity, it might be commodity, it might be a currency, and it's provide future perspective or future direction for the trend. Because in whenever we talk about the equity market, it doesn't matter we trade in Reliance, we trade in gold, or we trade in crude. We just bet on the price action, and technical analysis provide us the future perspective for the price of any commodity, any stock, and any currency. So for this perspective, today we are conducting this webinar, and I hope that this kind of thing, this product, this tool will help you to a lot while setting your targets, while setting your trading decision, and while setting your trading habits. So friends, आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वर्कशॉप कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि आप फेस्टिवल के टाइम, होली के समय में आपने टाइम निकाला. इट मीन्स ये शो करता है कि जो इंटरेस्ट है इस मार्केट को लेकर और इस प्रोडक्ट को सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो नोबडी नोज अबाउट दिस टेक्निकल एनालिसिस. Everybody means this only used by the technical analyst, but right now all the brokers provide this technical software to all the clients. Even IIFL also providing technical analysis software to all the clients by the app. You can download IIFL app, and you can use the technicals in the IIFL web, which will provide you the different kind of analysis of the stocks, commodity, currency, where you can use this product, this technical analysis for your while investing, while trading. See why it's important, because every time we are seeing that market actually works on the levels. So levels are very important. टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मार्केट जो है वो हमेशा लेवल्स पे काम करता है. हमने देखा मार्केट ने 8,000 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर 13,000. तो लेवल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हमें ध्यान होगा कि कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो मार्केट ने काफी क्रैक किया था और करीबन 7,800 तक निफ्टी नीचे करेक्ट हुआ था, और वहां से फिर मार्केट ने अच्छा एक रिबाउंड लिया और वी शेप रिकवरी हमने वहां पर आते हुए देखी थी. सो इट शोज दैट कि जो ट्रेंड मार्केट ने रिकवरी करी वो क्या लेवल था, और वहां से क्या एक सपोर्ट जोन था, या वहां से क्या रिट्रेसमेंट था. तो दैट इज नो इम्पोर्टेंट थिंग टू हाउ टू फाइंड आउट द लेवल्स वेयर मार्केट कैन रिट्रेस, और वेयर मार्केट कैन टेक रेजिस्टेंस, एंड वेयर मार्केट कैन गो फॉर द प्रॉफिट बुकिंग. सो हम कई बार देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है और सडनली वहां से मार्केट रिकवर कर जाता है, और तो हम देखते हैं कि जनरली वहां पर काफी अच्छा सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है जहां से मार्केट करेक्ट करता है. तो लेवल्स को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है लेवल्स, और टेक्निकल एनालिसिस हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम इसमें किस टाइम पर हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें. क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजी, प्रोवाइड्स अ स्विंग ट्रेडिंग काइंड ऑफ थिंग, where a trader can earn, or trader can go for trade in 5 minutes, in 15 minutes, in 1 hour, even in weekly, or even in hourly, or even in yearly perspective. So if you want to trade, you can choose technical analysis for swing trading. If you want to investing for year, you can use technical analysis for investment perspective. So technical analysis is a product or a tool which is very useful for the trading. So अगर हम इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो technical analysis is a product where you can just check the market depth, you can check the market volumes, you can check the market open interest, you can check the market momentum by this graph. So it's a graphical representation of stock prices.
So I think it's a very useful to use. So let's start with my presentation, and I will try to give you some live demo kind of thing where you can check and you can understand easily. So it's a very good study. So let's start my presentation. So what is technical analysis? Technical analysis is a study of price chart using historical price data. It means whenever we talk about the technical analysis, it's a basically a study about the historical price data. Means whenever we talk about any stock perspective, we just check out the historical price movement, how the market were traded on a last year, last day. You can the historical means 1 year prior, or yesterday, last week, last month, last year, even last decade. So we study on the historical price data, and on the behalf of historical price data, we try to predict future momentum, which will be means how we are seeing the market. And on while the starting while the means judge the future price momentum, we are using the historical price data. So in technical analysis, historical price data is very important. तो जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज कि हम किस तरीके से हम हिस्टोरिकल डेटा को हम देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हाउ वी जज और हाउ वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मोमेंटम. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव historical price of any stock. So it's a basically law of demand. Whenever demand is increased, price increase. Whenever demand is decreased, price decrease. So it's basically based on the law of demand. Why is based on law of demand? Because in market we are generally talking about the volumes and open interest. If there is no volume, there is no price momentum. So whenever we saw huge volume, there should be a price momentum. So that volume strength of the volume, it shows the demand, and the price action, it shows the price momentum. So it's a totally based on demand and supply factor. आप जनरली देखते भी होंगे, हम देखते हैं कई बार कि किसी स्टॉक के अंदर सडनली एक डिमांड देखने को मिलती है ड्यू टू द एनी काइंड ऑफ रीजन, माइट बी अ रिजल्ट, माइट बी अ सम काइंड ऑफ गुड एक्शन. सो जब भी वॉल्यूम हम देखेंगे, तो उसके अंदर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा. सो डिमांड सप्लाई, it's a very basic factor, it's a very economic basic factor which provides the guide to the technical analysis. It's also depicts the mass psychology. Means whenever we talk about the volume means it's a mass. So whenever we talk about the mass psychology, we have to check the volumes. So volume is a very important part of the technical analysis, because without volume, no price movement is there. So mass means a volume. So whenever we saw that the huge volume huge volume in any stock, we saw a price momentum. And it shows the means if people are doing the buying and going for buying stocks, it shows that is the huge volume towards the buying side. It shows that people are towards buy psychology. So whenever we saw a huge volume towards the selling side, so we can say that it shows the selling mass psychology. So mass psychology is very important because it's shows the volume, and volume means people are in which side, the people are buying side or people are selling side. So it shows that whenever we talk about volume prediction or volume strategy or volume participation, it shows the mic psychology, or it shows that people are thinking what they are thinking and what the market will react on the thinking. So it shows the math psychology. So there is two type of fundamental analysis. One is technical analysis, and one is fundamental and technical. In fundamental analysis, we generally find out the reason why the stock price moved. It might be, you can say, in fundamental, we generally read about the financial book of the company, performance of the management, performance of the company product, performance of the company strategy, company profit and loss, company ratios, and all the things. But in technical analysis, we predict that price discount everything, because whenever we see technical analysis, we are not talking about the fundamental reason. We are not checking the company's book. We are not checking the company ratios. We're not checking the company performance.
we just focusing on the price action. So price in technical analysis, we think that price discount everything. If pricing is rising, we are saying that company is performing a good. If prices is falling, we say that company is not performing. So the basis of the technical is only the price. So we are totally focus on price in technical analysis. On the behalf of the price, we plot a graphical representation of the price, and we see how the price reflect on the charts, and on the basis of the chart we try to find out the future perspective. So fundamental analysis and technical analysis are different. Actually, some people are saying that using Hindi, or some people are saying English. So I am using both English and Hindi. So टेक्निकल एनालिसिस जो है यहाँ पर हम सिर्फ जो किसी स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसको हम सिर्फ वैल्यू करते हैं, और उसी को हम यहाँ पर फोकस करते हुए किसी भी स्टॉक को यहाँ पर देखते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम केवल जो रीजंस होते हैं, चाहे वो कंपनी की बुक्स हो, कंपनी के बैड डेट्स हो, कंपनी की असेट हो, कंपनी की लायबिलिटी हो, हम उसके थ्रू वर्क करते हैं और उसको देखते हुए हम स्टॉक में पोजीशन लेते हैं। और जबकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम ओनली प्राइस के ऊपर ही हम खाली वर्क करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो टेक्निकल एनालिसिस की स्टॉक है वो जो उसका प्राइस है, हाउ इट्स परफॉर्मिंग, एंड उसके बिहाफ पर हम ट्राई करते हैं कि आगे उसका क्या मोमेंटम हो सकता है। सपोज अगर हम बात करें, लेट्स से अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं, तो अगर हम उसके फंडामेंटल साइड जाएं तो आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के टाइम पर उसका जो डिमांड था यूरोप के अंदर, उसके बाद दो प्रोडक्ट हैं जो काफी चलते हैं, वो यूरोप में बंद हो गए थे, और हमने देखा था कि उसका स्टॉक टूटता हुआ नीचे करीबन 70-80 की रेंज में आ गया था। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो दैट इज अ वेरी गुड जोन वेयर पीपल हैव बॉट, एंड अगर आप उसके वॉल्यूम्स की साइड जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस 70-80 की रेंज में काफी ज्यादा वॉल्यूम हमने देखा था। मींस अराउंड 70-80 काइंड ऑफ लेवल वी सॉ अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम। इट मींस पीपल आर कीन टू बाय दिस स्टॉक at this point of time, and suddenly we saw a huge jump in the Tata Motors stock. So whenever we talk about the technical analysis, we just focusing on the price, not on the company fundamentals. So let's start with the charts and technical analysis. So there are three type of chart: line chart, bar chart, and candlestick chart. So I would like to show on the graphs. So this is the graph of Nifty. So you can say this is a line chart where मतलब ये लाइन चार्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हमने पिक्चर को जो ड्रॉ किया है वो सब लाइन के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन है वो जो भी क्लोजिंग रहा है डेली बेसिस का, उस क्लोजिंग को ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ की गई है। तो दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट जिसका पास हम वर्क करेंगे। आप देखेंगे टेक्निकल में कैंडलस्टिक चार्ट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर हम लाइन तो ये चार्ट है निफ्टी का। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट, और यहाँ पर एक जो व्यू है एक है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट इज अ यू कैन से इट्स अ जस्ट अ प्लेन लाइन व्हिच इज ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो डेली का जो क्लोजिंग होता है उसके बेस पर इसको डिजाइन किया गया है। उसका जो क्लोजिंग होता है उसके क्लोजिंग के पॉइंट को जोड़कर ये लाइन बनाई गई है। मीन इट शोज द क्लोजिंग of the stock, and on the basis of closing you will see the price trend of the Nifty. So this is the Nifty price chart.
And now if we convert in the candlestick chart, because candlestick, why candlestick? Candle is a very basic thing. We have learned about candlestick in 9-10 standards, because it's a Japanese product. So it's a very easy to use. You can see it's a easy to understand because it shows a candle of a daily basis. So हर दिन का एक कैंडल है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो तरह का कैंडल है, मींस एक व्हाइट और एक ब्लैक। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ब्लैक और व्हाइट और रेड और ब्लू, जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहें। इट देयर इज ओनली 2 कैंडल्स, you can use any color. I have used here black and white, which I'm comfortable in this color, and you can use any type of color where you can use this technical charts and in the graph. So this is a chart picture, how chart seems like in a line chart or a candlestick chart. So we are working on candlestick chart because it's a very easy to use and it's very easy to understand how we use this graph. So now let's talk about the candlestick basis. Candlestick charts are their effective way to visualize price movement, and there are 2 basic candle. जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वहां पर 2 कैंडल्स हैं, एक व्हाइट और ब्लैक. So white represents the bullish candle and black candle represents the bearish candle. When the close is higher than open, it shows the bullish candle, and when the close is lower than the open, that is a bearish candle. जब मार्केट पिछले दिन के जब मार्केट ओपन होता है और क्लोज ऊपर करता है, दैट इज अ बुलिश कैंडल, और जब मार्केट ऊपर खुलकर नीचे बंद होता है, दैट इज अ बियरिश कैंडल. सो आपके सामने ये चार्ट है निफ्टी का. आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 तरह का कैंडल दिख रहा है, दैट इज अ ब्लैक और वन इज व्हाइट. Black shows the bearish candle and white shows the bullish. Now let's check the property of the candle. If we check it the mouse, you can see this is the okay, we check out the 25th मार्च का कैंडल का हम देखते हैं 25th को कैसा ट्रेंड था. तो आप देखेंगे कि 25 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था 14,570 पे और क्लोज हुआ है 14,324. इट मींस मार्केट जो ओपन हुआ और उसके बाद जो नीचे क्लोज हुआ, दैट इज शो द बियरिश कैंडल, राइट. और अगर हम उससे पहले जाएं, दैट इज 19 मार्च, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 14,471 और क्लोज हुआ है 14,744. इट मीन इट्स अ बुलिश कैंडल. जब भी मार्केट ऊपर बंद होता है ओपन होने के बाद, दैट इज बुलिश साइन, और जब मार्केट ओपन होने के नीचे बंद होता है, दैट इज अ बियरिश साइन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि which type of candle we are seeing. If we are seeing a bullish candle, it shows the bullish momentum. Whenever we saw a bearish candle, it means it shows the bearish momentum. So we have to understand firstly, because this is a basic thing, कि हम जब हम टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो हम आइडिया लगा सकें कि किस तरीके का हमारा जो कैंडल है यहाँ पर बन रहा है, और इससे हमको ट्रेंड पता लगेगा कि हाउ वी आर लुकिंग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म. So now this is a daily chart of the Nifty. Now if we convert this chart on a weekly basis, sorry, this is convert in the monthly basis. So this is the monthly price trend, right? Now if we convert this chart on a yearly basis, so you will see a different picture. So this is a Nifty price chart. Here is only a 3 black candles, one in year 2008, second one is year 2011, and one is 2015. You can see the complete positive trend of the Nifty. In the last year, we'll see that Nifty open at 12,002 to 12,202, made a low of 7,511, and last year it closed at 14,024. It means last year market opened at 12,200, it made a low of 7,500 and closed at 14,000, and we see it made a bullish candlestick. And by the follow of this candlestick, this year we saw a bullish candle, and this year we saw that Nifty made a high of 15,431, and from last consecutively 5 years we saw a positive candle, and continuously we see a continuously positive trend in the stock market.
However, if you see a complete chart from 2007, there is only 3 week candles, not more than 3 candles. It means the trend of stock market is completely positive. And why? Because in last year कोरोना वायरस के चलते हमने देखा कि मार्केट में इतना ज्यादा गिरावट था, सारी इकोनॉमी लॉकडाउन हो गई थी, चाइना सबसे नीचे आ गया था, यूएस के अंदर इतना लॉकडाउन हो गया था, यूरोप के अंदर काफी करेक्शन हो गया था, इंडिया के अंदर करेक्शन हो गया, इवन सबकी जीडीपी जो थी वो नेगेटिव चली गई थी। उसके बावजूद भी हमने जो ट्रेंड था निफ्टी का वो यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ, और हम देखेंगे कि इस साल भी यहाँ पे जो मार्केट ने भी अभी तक ट्रेंड किया है वो पॉजिटिव ट्रेंड किया है। अगर इसके विपरीत आई विल लाइक टू शो द डाउ जोन्स चार्ट, you will see a picture that we are continuously following the Dow Jones. करंटली आप देखेंगे कि जो डाउ का चार्ट बना है वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही बना है, और यहाँ पर भी हमने करेक्शन देखा था, तो ऑलमोस्ट डाउ के अंदर भी हम रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। और इसका जो आप देखेंगे जो कैंडल स्टिक बनी है ये सब पॉजिटिव कैंडल बनी, यहाँ पर भी सिर्फ 3 बियरिश कैंडल है, इट हैज ओनली 3 बियरिश एंड मैक्सिमम बुलिश कैंडल्स। सो कैंडल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसकी बॉडी के बारे में हम जानना चाहेंगे, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज कैंडल स्टिक शोज द बियरिश और बुलिश ट्रेंड। सो बुलिश की पहचान क्या है? जब मार्केट ओपन नीचे होता है और ऊपर बंद होता है, व्हेन द मार्केट क्लोज्ड ऑन अ हायर above the open, it's a bullish, and the when market close below the open, it's a show the bearish candle. So you can use any color, black or white, blue, green or red, blue and yet red, any type of color you can use. See, now the next slide is very important, is the time frame and validity of chart. टाइम फ्रेम एंड वैलिडिटी ऑफ चार्ट, इट मींस कि हमको कितने समय का चार्ट देखना चाहिए और कितने समय के चार्ट के लिए हमको ट्रेडिंग लेना चाहिए। यहाँ पर कई बार ट्रेडर मिस्टेक ये करते हैं कि वो डेली का चार्ट देखकर ईयरली की पोजीशन ले लेते हैं, या डेली का चार्ट देखकर वो वीकली पोजीशन उठा लेते हैं, या फिर डेली में अगर मार्केट ऊपर बंद हुआ तो दे विल टेक अ पोजिशनल कॉल। इट्स नॉट अ राइट एक्शन, बिकॉज basically technical analysis is based on the science or a natural things. There are so many natural things which we are seeing and we can use while trading. मीन्स आप देखेंगे कि पक्षी किस तरीके से आकाश में उड़ता है, और जब वो अपने पंख को मतलब फ्लाई करना छोड़ देता है तो वो वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए फिर इसको अगेन से वॉल्यूम की जरूरत होती है ऊपर उड़ने के लिए। अगर आप समुद्र की लहरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले छोटी लहर आती है, फिर छोटी लहर आती है, फिर सडनली एक बड़ी लहर आती है, वेव्स जिसको हम बोलते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन साइंस एंड बेसिकली मच रिलेटेड विद द नेचुरल थिंग्स। सो अगर आप जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, या फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो टोटली आपके नेचर से बहुत रिएक्ट करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे और आप किसी चार्ट के पैटर्न को देखेंगे या किसी चार्ट के आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको एक दिखेगा कि आप एक किसी पेड़ के तने को आप जैसे देख रहे हैं, मींस इट्स यू कैन से अ रूट टू द मींस अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। So you can like this kind of thing. Even there are so many structures which are totally based on the natural things. So technically this is a very common thing, or it's a very easy to understand or very useful while trading in industry. So time frame is very important कि हम कितने टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हमारा जो टारगेट है वो क्या है। मीन्स इफ वी लाइक टू ट्रेड अ स्विंग ट्रेडिंग, so we have to choose a different time frame. If we want to trade a short term trend, we have to choose a different time frame, and if we want to take a positional call, so we have to take a different time frame. So let's start the swing trading. If we want to trade a short term trend, so we have to consider the historical uh, last 7 to 10 days. Means अगर मेरे को एक या दो हफ्ते के लिए पोजीशन लेना है तो आई हैव टू चेक प्रीवियस 7 to 10 डेज प्राइस ट्रेंड कि पिछले 7-8 दिनों का ट्रेंड कैसा था, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं आने वाले 7-8 दिनों के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे को लेना है कि मेरे को नेक्स्ट 15 डेज के लिए या एक अगली एक्सपायरी के लिए मेरे को ट्रेड लेना है, तो वी हैव टू चेक 3 to 5 वीक्स प्रायर थिंग। मीन्स पिछले हिस्टोरिकल में 3 से 5 हफ्तों में क्या ट्रेंड रहा, तो वो मीडियम ट्रेंड के लिए मेरे को यहाँ पे क्लियर करेगा कि पिछले 3 से 5 हफ्तों में आपका ट्रेंड पॉजिटिव था, तो चांस है कि आपका जो अगले हफ्ते आने वाला ट्रेड है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मींस मेरे को डेली ट्रेड करना है, तो वी हैव टू लुक आफ्टर द यस्टरडे प्राइस मोमेंटम कि पिछले हफ्ते या पिछले दिन कैसा मोमेंटम रहा, और मार्केट जब खुला तो कैसे खुला,
गैप से अप खुला, गैप से नीचे खुला, और फिर एक एक घंटा में रुक कर ट्रेड करता हूँ, तो एक घंटे का जो ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है, मींस आई हैव टू कंसीडर द लास्ट 1 आवर प्राइस मोमेंटम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 आवर वी हैव टू टेक अ पोजीशन। सो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं 1 घंटे की पोजीशन लेकर ट्रेड कर रहा हूँ, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने पिछले 1 घंटे के चार्ट को देखकर ट्रेड लिया है, तो मेरा जो एक्शन है वो अगले 1 से 1.5 घंटे में आ जाना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पिछले 1 घंटे को लेकर मैंने ट्रेड लिया है तो मैं उसको पूरे दिन लेकर बैठा रहा हूं। मेरे को 1 घंटे के ट्रेड के लिए 1 घंटे के ट्रेड के लिए मेरे को 1 घंटे का पिछला जो हिस्टोरिकल है वो देखना बहुत जरूरी है। If I want to trade for 1 hour, we have to consider the historical 1 hour momentum, and I have to exit within 1 or maximum 2 hour। क्योंकि अगर मेरा 1 आवर का ट्रेंड पॉजिटिव बना है तो उसका जो रेप्लीकेशन है वो आपको 1 से 1.5 घंटे में दिखाई देगा, तो वो उसके लिए मेरे को 1 से 1.5 घंटे में निकलना बहुत जरूरी है। अगर मैंने डेली पिछले 7-8 दिनों का ट्रेड लिया है, तो अब मेरे को क्या देखना है कि जो मेरा पिछले 7-8 दिनों का जो मैंने ट्रेंड देखा है, मीन मैंने पिछले आई हैव कंसीडर लास्ट 2 वीक्स ट्रेंड, सो आई हैव टू चेक कि मेरे को 2 हफ्ते के अंदर उसका जो रेप्लीकेशन है वो आना चाहिए। तो जो भी मैंने ट्रेंड देखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रेंड चल रहा है तो मैं वहां पर पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली आज की मैंने एक डेली ट्रेंड को देखा और मैंने आई टू का पोजीशन फॉर 1 ईयर। नो, वी हैव टू कंसीडर ईयरली, देन वीकली, देन मंथली, देन ईयरली। सो आई हैव टू चेक कि मैं किस टाइम फ्रेम को देखकर पोजीशन ले रहा हूँ, और फिर मेरा टाइम फ्रेम भी उतना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इतना होना चाहिए। अगर मेरे को लॉन्ग टर्म ट्रेंड लेना है, मींस मेरे को 1 साल के लिए ट्रेंड लेना है, तो आई हैव टू कंसीडर लास्ट 4 to 6 मंथ ट्रेंड, कि पिछले 4 से 6 महीनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा है, तो मैं उस ट्रेंड को यहाँ पर आगे फॉलो कर सकता हूँ। अगर हम आज की बात करें तो अभी तक ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे हो चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और हम देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 15,000 का हाई निफ्टी ने बनाया है, और उस हाई से अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ है। वी कैन नॉट से दैट कि मार्केट अब थोड़ा सा और आगे नया हाई बनाएगा, बिकॉज पिछले 3 हफ्ते में मार्केट ने जो हाई बनाया है, बट उसका जो मार्केट ने हाई बनाया है उसके बाद अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ है। तो on the behalf of this 3 month we can take a position for next 3 to 4 month, not for a year। तो ईयर के लिए मेरे को कम से कम 6 महीने का ट्रेंड देखना होगा कि पिछले 6 महीने का जो ट्रेंड रहा है वो कैसा रहा है, और उसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर पोजीशन ले सकता हूँ। सो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि मैं किस टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहा हूँ, किस टाइम फ्रेम का मैं चार्ट देख रहा हूँ। कई बार ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, वो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और पूरे दिन की पोजीशन ले लेते हैं, तो 15 मिनट का रेप्लीकेशन 1 घंटे में उनको प्रॉफिट मिलता है, बट वो प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, और देखते हैं क्लोजिंग के टाइम में वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आपने 15 मिनट का चार्ट अगर देखा है, तो इट मीन्स कि आपका जो एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, या जो आपका जो एग्जिट टाइम होना चाहिए, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर होना चाहिए। कि आपने 15 मिनट के बेस पर आपने चार्ट देखकर पोजीशन ली, आपका 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बना, आपने उसको देखकर पोजीशन ली, तो उसके बिहाफ पर आपका एग्जिट भी ऐसा ही होना चाहिए। सपोज जैसे हम अगर लेट्स से हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर कोई बिल्डर एक प्रॉपर्टी बनाता है, उसको अगर 20 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो वो उसको थोड़ा सा बेसमेंट खोदना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बेसमेंट। तो 3 से 4 बेसमेंट बनाने के बाद ही कैन बिल्ड अ 20 to 18 स्टोरी बिल्डिंग। बट इफ ही वांट्स टू बिल्ड अप अ 100 काइंड ऑफ स्टोरी, he cannot based on the 3 to 4 basement, he have to made a more basement under the earth। so on the basis of आपका जो बेस कितना है, आपका जो टाइम फ्रेम का बेस कितना है, उस बेस के अकॉर्डिंग हम एक पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को 1 घंटे के लिए पोजीशन लेनी है, तो आई हैव टू कंसीडर 15 मिनट चार्ट, आई हैव टू कंसीडर 1 आवर चार्ट। अगर मेरे को डेली पोजीशन लेनी है या 1 हफ्ते के लिए पोजीशन लेनी है, आई हैव टू कंसीडर 1 वीक चार्ट और डेली प्राइस चार्ट। If I want to take a long term position, means 5 to 6 month position, so we have to consider the monthly chart. So on the basis of that thing, we have to consider historical price, and on the behalf of the historical price chart, we have to consider, we have to find out the future price perspective of the stock price. So time frame and validity of chart is very important. So now is the second important thing is support and resistance level. Support and resistance means support is price should rise after touching support. Resistance means price should fall after hitting resistance. Support जहां पर हम डिमांड देखते हैं, रेजिस्टेंस जहां पर हम सप्लाई देखते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन
लेवल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू द ऑन द चार्ट हाउ टू कैलकुलेट support and resistance. Means high and low, previous high, previous low, previous day high, previous day low. Support become resistance, means when the market breach the support zone, now it become a resistance, and when the market breach the resistance level, now it become a support. Trading range, we have saw that some stocks only trade on a range between 10 to 20 rupees, so it's kind of 10 is a support and 20 is a resistance zone, the trading range. Support and resistance zone, sometimes we saw that some stock uh, means trading between on near support and resistance zone. Pivot calculator, this is a calculator where you can download from the Google, and you can put yesterday's high, day open, high, low, close, and you will find out the levels. So these are the a few method where you can find out the support and resistance zone. Now look on this technical chart. So this is a Nifty price chart. So अगर हम is a Nifty price chart, तो हमको support resistance देखना है, तो how we can see the support. So last year the closing of the Nifty at 13,981, and this year market breached the last year high. So now this high, last year high, become a support for this year. So means currently we are trading at 14,507. So we can say that 13,980 become the very strong support zone for this year. अगर मार्केट 13,980 का लेवल ब्रेक करता है नीचे में निफ्टी, तो हम देखेंगे कि मार्केट में हम एक अच्छा करेक्शन देख पाएंगे, और अगर मार्केट उस लेवल पे सस्टेन करता है तो वहां से हम एक अच्छा रिकवरी भी देख सकते हैं, राइट. नाउ व्हाट वुड द रेजिस्टेंस द दिस ईयर हाई 15,400. दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो रेजिस्टेंस जोन बना है वो बना है करीबन 15,400 के आसपास में, 430 के आसपास में. मींस 15,400 वुड बी द रेजिस्टेंस. सो फॉर दिस ईयर वी कैन से दैट 13,980 the support zone, and 15,400 would be a resistance zone. So this is for long term perspective. Now if we talk about the monthly perspective, so we have to consider the previous month high low. Previous month high is for 15,431, so this would be a resistance, and support would be a last month low is 13,661. So we can say that Nifty has a support, short term support at 13,660. So 13,660 would be a support for this month. So we can say that कि हाँ मार्केट जो है अभी इस रेंज में मूव कर सकता है. तो ये जो रेंज है काफी दैट्स an important range. Now let's talk about in the weekly. So last week का जो ट्रेंड था, अगर आप देखेंगे लास्ट वीक मार्केट का हाई था निफ्टी का 15,051 एंड क्लोज रहता 14,744 एंड मेड ए लो ऑफ 14,350. सो प्रीवियस वीक का जो लो था 14,350 और प्रीवियस वीक का जो हाई था 15,051. सो दैट वुड बी अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर नेक्स्ट वीक. और इस वीक को अगर हम देखें, सो दिस वीक मार्केट मेड ए हाई ऑफ 14,878 and it made a low of 14,264. For the coming week we can say that 14,878 would be a resistance and 14,264 would be a सपोर्ट जोन. सो अब हमारा जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, हम उसमें ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रेंड है वो किन लेवल्स पे बेस रहेगा. तो ये लेवल्स है क्योंकि हमारा जो पिछला वीक गया है उसमें ये लेवल्स रहे हैं. और इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा ये वीक गया है उसने अपने जो प्रीवियस वीक था 14 मार्च वाला वीक था, उसका जो लो था 14,350 का, उसको ब्रेक तो किया बट उसके नीचे क्लोज नहीं किया. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मार्केट 14,350 के नीचे क्लोज कर देता तो हम अगेन और भी वहां पर डेप्थ सेलिंग देखते, बट उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, उसके ऊपर क्लोज किया है, उसको प्रीवियस वीक को लो को ब्रेक तो किया है बट नॉट एबल टू क्लोज बिलो दैट लेवल. इट मींस कहीं ना कहीं 14,300 14,400 वुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जहां पर हम हाई एक्यूमुलेशन आता हुआ देख रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट ये कि अगर मार्केट निफ्टी 14,300 14,400 को वैल्यू करता है, वहां पर सस्टेन करता है और उसके ऊपर ये कमिंग वीक में भी क्लोजिंग करता है, तो हम देखेंगे कि वहां से अच्छा हम रिकवरी देखेंगे. तो दैट इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ द सपोर्ट. नाउ द रेजिस्टेंस,
आप देखेंगे कि मार्केट में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मार्केट कंटिन्यूअसली जो हाईज है, नया हाई तो मार्केट ने नहीं बनाया है। लास्ट में मार्केट ने 14 फरवरी के वीक में हाई बनाया था 15,431 का। उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली नए लोज मार्केट ने रिवाइज किए हैं। पहले लो बनाया मार्केट ने 14,467 का, अगेन लो बनाया 14,350 का, फिर नया लो बनाया 14,264 का। यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट के जो लोज हैं वो नए लोज बनते जा रहे हैं, बट जो हाईज है मार्केट उसको नहीं बना रहा है। तो जब तक मार्केट के हाईज नए नहीं बनेंगे और नए लोज बनेंगे, इट शोज दैट मार्केट आर फेसिंग रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि जो मार्केट के पास अब रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं, वो एक तो अगर हम अपने इस ही वीक का हाई देखें दैट इज 14,900, अगेन वी सी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अबव 15,050, और उसके ऊपर अगर हम देखेंगे दैट इज अ 15,330। सो ये जो लेवल जोन है मींस 15,000 से लेकर 15,300 का जो जोन है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी हाई प्रेशर और हाई सप्लाईज, बिकॉज ये मार्केट ने यहाँ पर नया हाई नहीं बनाया है, मार्केट इज मेकिंग कंटिन्यूसली न्यू लोज। सो इट मीन्स कि हायर लेवल पर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जब भी मार्केट 15,000 के ऊपर या 15,300 के आसपास जाएगा, तो वहां पर हमको कॉशियस रहना है कि वहां पर हम अपनी पोजीशन में से प्रॉफिट बुक करें, और वी कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ सप्लाई। वहां पर हम सप्लाई देख सकते हैं और वहां से फिर हम अगेन करेक्शन जो है मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। दिस द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। इफ वी टॉक अबाउट द डेली, अगर हम उसको डेली में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे डेली के अंदर डिफरेंट पिक्चर है बिल्कुल ही। आप देखेंगे पिछले 5 से 6 दिनों में कंटिन्यूसली मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है, और आप देखेंगे कि जो ब्लैक कैंडल्स हैं, जो बियरिश कैंडल है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी ज्यादा है। इट मीन्स कि जो बियरिश है यहाँ पर हैवी हुए हैं और रोज नया एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे यहाँ पर जो सेलिंग है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली बनती हुई दिख रही है। Now, the next is the trend deciding. How we decide the trend. Uh, Dow believed that stock market as a whole was a reliable measure of overall business condition within the economy, and then by analyzing the overall market, one could accurately gauge those conditions and identify the direction of major market trends and the likely direction of individual stocks. So, Dow कहते हैं कि जो भी इंडेक्स होता है वो इट शोज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सो इंडेक्स अगर आपका ट्रेंड में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तो इट शोज कि आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आपको आइडिया लगेगा कि हाउ द इकोनॉमी इज परफॉर्म। So if we talk about Indian economy, if we check Sensex, we can say that if our Sensex is performing, we can say that our economics is performing. अगर हमारा Sensex down है, we can say that हमारी जो economy है वो perform नहीं कर रही है। So basically the economy are totally based on the index based economy, कि अगर आपका index perform कर रहा है तो means economy is performing, index perform नहीं कर रहा है it means not performing. So we, for this perspective, we have to find out the how to find out the trends. So when the market made a higher top, higher bottom, it shows the uptrend. Means यहाँ पर मार्केट नए जब हाइज बनाती है बट लोज को रिवाइज नहीं करती है, मीन्स लो जो है वो ऊपर होते जाते हैं और जो हाइज है वो बनते जाते हैं। इट्स अ हायर टॉप, हायर बॉटम। डाउन ट्रेंड मीन्स लोअर बॉटम, लोअर टॉप। जब मार्केट नए लोज बनाती है और हाई रिवाइज नहीं करती, जो कि हमने अभी करंटली देखा है निफ्टी के अंदर, पिछले 3-4 हफ्तों में मार्केट ने हाइज नहीं बनाए हैं, बट हाँ लोज जरूर नीचे नए डिजाइन करे हैं। इट शोज दैट इट्स अ लोअर टॉप, लोअर बॉटम। एंड इज अ साइडवेज ट्रेंड, मींस मूविंग बिटवीन अ शॉर्ट रेंज। एक शॉर्ट बैंड के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, इट शोज अ साइडवेज ट्रेंड। जस्ट आई वुड लाइक टू शो ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो अगर आप डेली में देखेंगे, सो डेली में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, मार्केट जो था अपने नए हाइस तो नहीं बना रहा था, बट लोज यहाँ पे डिफाइन कर रहा था। नए लोज अगर आप देखेंगे कि 12 तारीख को मार्केट का क्या लो था, फिर 15 को क्या लो था, फिर उसके बाद मार्केट ने अगेन नया लो बनाया 18 तारीख को, फिर 19 को अगेन नया लो बनाया, और फिर अगेन मार्केट ने 25 तारीख को नया लो बनाया। तो मार्केट ने हाइज यहाँ पे रिवाइज नहीं करे हैं, बट हाँ लो यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट रिवाइज करता हुआ आ रहा है। इट मीन्स इट्स इन अ वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड इज रिकवर्ड रिवर्स इन अ नेगेटिव जोन। सो वी हैव टू कॉशियस अबाउट दैट कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी इस हाई लेवल पे खड़ा है जहां पर मार्केट नए लोज बना रहा है। इट मींस यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। बट हाँ अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगेन जो हाइज है उसको ब्रेक करता हुआ नए हाइज बना रहा है, प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक कराया, नया हाई बनाया,
फिर पिछले मंथ का हाई ब्रेक करके दोबारा ऊपर गया। तो जब वो मार्केट प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ के हाईज को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, जो कि हमने पीछे देखा था, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल जाएंगे, यहाँ अगर आप देखते हैं कि सिमिलरली मार्केट ने जब यहाँ पर हाईज ब्रेक करने स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोज नए हाईज बन रहे थे। तो इट मीन्स कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। तो जब भी हाईज बनेंगे तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो जब भी मार्केट पिछले डे का आपका हाई ब्रेक करे, पिछले वीक का हाई ब्रेक करे या पिछले मंथ का हाई ब्रेक करे, इट मीन्स शोज दैट कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। So I am talking about the volumes. Dow says that volume is very important because it shows the participation. It shows the majority of the money in the coming. So अगर हमें वॉल्यूम दिखता है किसी भी स्टॉक में कि हाँ इसमें वॉल्यूम हमको अच्छा दिख रहा है और उसमें हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं और वो वॉल्यूम में भाव ऊपर जा रहा है, तो दैट इज शोज दैट कि जो ट्रेंड है वो मेरा कंफर्म है। तो व्हेन द वॉल्यूम्स कंफर्म द ट्रेंड, कोई ब्रेकआउट होता है मार्केट, अगर आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट ने नया हाई ब्रेक किया है और वहां पर वॉल्यूम हमने देखा है, तो इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ मार्केट ने नया हाई बनाया है, इट मीन्स कि जो वॉल्यूम्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो जब भी हम कोई ऐसा देखते हैं कि मार्केट नया हाई बना रहा है और वहां पे वॉल्यूम हमें दिख रहा है, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव। वॉल्यूम्स के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है, आप इसको प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, सी ओपन इंटरेस्ट फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट, बट अगर आप इसको भी अपने में इंक्लूड करते हैं, मींस व्हेन द प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग, इट मींस इट्स अ कंफर्म पॉजिटिव ट्रेंड। इफ द प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम इज राइजिंग एंड ओपन इंटरेस्ट इज राइजिंग, इट शोज दैट द कंफर्म अ पॉजिटिव ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है किसी स्टॉक का और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिव ट्रेंड, कि लोग जो है पीपल आर ऑन सेलिंग साइड, right? So these are very two theories there. You can note down this point. When the price is rising, volume is rising, and open interest is rising, it shows the positive trend. When the price is going down and rising, volume rising, open interest, it shows the negative trend. So you can note down this thing. So whenever you saw any huge volume action, price action, so you have to check फर्स्टली वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट भी उसी रेशो में बढ़ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर द बाय। अगर उस रेशो में नहीं है तो माइट बी चांसेस देयर कि वहां पर कुछ अनवाइंडिंग्स हो रही हैं, लोग पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, और या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है आपका, और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले वॉल्यूम भी बढ़ा है साथ में, और ओपन इंटरेस्ट में भी परसेंटेज चेंज काफी अच्छा हुआ है, या आप कॉल और पुट का रेशो देख रहे हैं और आपका कॉल का जो रेशो है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस को देखना बहुत जरूरी है, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, कॉल पुट का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर सामने समझ में आएगी। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वर्क। अगर आप मार्केट शुरू होने से 10 मिनट पहले भी स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आपका जो ट्रेंड है वो किस साइड जाने वाला है। अगर आप, क्योंकि सारे डेटा जो है वो एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, हमारी आईएफएल की जो एप्लीकेशन है, मोबाइल की जो ग्राफ्स है वहां पर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर कंप्लीटली आप उसको चेकआउट करेंगे तो आपको डिटेल मिलेंगी। आपको जस्ट नोट डाउन करके आप उसको अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट वर्कशीट, तो आपको पता लगेगा कि आपका जो ट्रेंड है मार्केट का वो किस साइड जाने वाला है। समटाइम हम देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव खड़ा होता है, बट हमारी मार्केट खुलते ही वो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ट्रेंड डाउन होता है। तो जनरली ये चीजें हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्यू कैंडल स्टिक्स पैटर्न आर इज देयर, बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको किस तरह का कैंडल स्टिक को देखना है और किस तरह के कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हमको पोजीशन लेना है। सो वन इज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड अदर इज बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। आप सामने देख रहे हैं जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, यहाँ पर जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इट शोज द बुलिश ब्रेकआउट। अगर कोई कैंडल बनता है बियरिश कैंडल और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल बना है जिसने उसको पूरा कवर कर लिया है, अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोले कि कल बियरिश हावी थे और आज हमने देखा है कि बुलिश ने पूरा बियर को इंगल्फ कर लिया है और मार्केट उसके ऊपर क्लोज किया है, इट शोज द बुलिश इंगल्फिंग। तो अगर ऐसा पैटर्न बनता है और तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय का ट्रेड लेना चाहिए। वहीं अगर हम इसके विपरीत हम देखते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न,
तो यहाँ हम देखेंगे कि जब भी एक बुलिश कैंडल बनता है और बियर नेक्स्ट डे उसको पूरा कवर कर लेते हैं, पूरा इंगल्फ कर लेते हैं, इट शोज अ बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ हम देखेंगे कि बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न में क्या फर्क है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तो वी जनरली टेक अ बाय पोजीशन, और जब भी बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वी टेक अ सेल पोजीशन और वी एग्जिट फ्रॉम द बाय पोजीशन। सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और जनरली हमें देखते हैं इट्स अ वेरी कॉमन टूल, और ये जब बनता है तो इट्स वर्क्स अ वेल। सो जब भी हम इसको देखें तो हम कॉशियस हो जाएं कि ये पैटर्न बन रहा है और हमको अब जो पोजीशन है उसको या तो लेना है या हमको उसको एग्जिट करना है। आई विल शो इन द चार्ट, just to go through with the candlesticks. Dark cloud cover means when the market पिछले दिन अगर हम देखते हैं कि मार्केट बुलिश बंद हुआ है और हम सडनली आज बियरिश मार्केट देखते हैं, और बियरिश मार्केट जो है वो कल की जो बुलिश कैंडल है उसका 50% को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, तो दैट इज अ डार्क क्लाउड कवर। मीन देखते हैं कि सडनली आसमान में काले बादल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इट इज साइन ऑफ काइंड ऑफ थिंग कि आज सूरज निकला था, काले बादल आए और उन्होंने उस सूरज को छुपा लिया। तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि हाँ यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ हो सकती है माहौल में। तो अगर ऐसा साइन दिख रहा है तो इट शोज कि आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पर आप उससे निकल जाए, मीन्स या फिर जो आपने जो बाय पोजीशन किया हुआ है उससे आप निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर साइन हो सकता है कि बियरिश अगले दिन हावी हो जाए और आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से मार्केट जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो चार्ट पे कैसा बना है। इसके विपरीत है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मींस जब एक यहाँ पर आपने देखा था डार्क क्लाउड कवर में पहले बुलिश हावी थे और बियरिश ऊपर से नीचे आते हुए हावी हो गए थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले बियरिश हावी थे बट नीचे से सडनली बुलिश लोग आए, उन्होंने मार्केट को खरीदारी करी और बियरिश को 50% पियर्स करते हुए ऊपर बंद किया। इट मींस इट शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड। सो कहीं ना कहीं बियरिश और पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर में आप देख लेंगे दोनों उसके अपोजिट है। So it's kind of bearish pattern. Whenever it will found this pattern, we just go for the buy or exit from the sell position. It's a sign of the trend reversal. You can say these are the trend reversal kind of candlestick patterns. डोजी पैटर्न इज अ वेरी कॉमन। हमने अभी कल भी हमने देखा है कि डोजी बना है हमारी निफ्टी में। तो जब भी ये डोजी बनता है इट मींस इट्स अ इंडिसिसिव ट्रेंड। जब भी ऐसा आपको दिखाई दे प्लस काइंड ऑफ थिंग कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, और इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल ट्रेंड ऑल्सो। तो जब भी ये ट्रेंड बनेगा पॉजिटिव और साइड में तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो इंडिसिसिव हो सकता है। Hammer and inverted hammer. Hammer means you can say generally as a name. Hammer is just like a tool. So hammer and inverted hammer, it's a kind of tool where you can find on a technical chart. Whenever you spot this kind of structure, candlestick structure, you can just buy. If you saw any hammer on the chart, you can just buy, and whenever you saw a inverted hammer you can go for the sell, because it's a tool which is a give you a 90% kind of confirmation. Whenever you spot this hammer and inverted hammer you can go for the trade. The property of the hammer is whenever you found this hammer on support level you can go for the buy. Whenever you found inverted hammer on resistance level you can go for the sell. Hammer is shows the positive trend, inverted hammer shows the negative trend. So hammer, the value of the hammer is only on the support, not on resistance. If you found any hammer kind of structure it means it's a positive trend, and whenever you saw any inverted hammer on resistance level then you can go for sell. The importance of the spot
is very important for hammer and inverted hammer. Hammer is based on totally spot on the support level, and inverted hammer totally find out on the resistance zone. Means hammer जो है हमको support level पर ही बनना चाहिए, और inverted hammer जो है वो हमारा resistance level पर बनना चाहिए. तो inverted hammer और hammer के बीच में ये difference बहुत important है. तो ये जब भी हम इसको spot करें तो हम ये देखेंगे मार्केट एक गिरावट के बाद अगर ये हैमर बना है तो इट मींस इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, और अगर बढ़ती हुई मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना है इट्स अ नेगेटिव हैमर. तो हैमर जो है वो पॉजिटिव और it shows the trend reversal. So whenever you saw a hammer on the falling market, it's a positive trend, and whenever you saw spot inverted hammer on rising market, you can go for sell or exit from the buy. Hanging man. Hanging man is a, you can say just like a, you can say here in the hammer. Whenever you saw any hanging man kind of thing on technical chart on the resistance zone, whenever you spot this on support zone, it shows that it's a hammer, positive trend. But whenever you saw a hanging man kind of thing on resistance zone, this hammer, it would be a hanging man, and you can go for the short because it's a sign of reversal. And this is an indication of reversal that people are going to sell on higher level. So whenever you spot this candle on resistance zone, then you can exit from the buy position and go for sell or try to sell in the market. So this is a bearish pattern. Double top, double bottom means tweezer top, tweezer bottom. This is a very good sign. Whenever you found any tweezer top, it shows that market facing a resistance, or you can go for the short. And whenever you found any tweezer bottom, means double bottom आपने देखा, so it means shows that it's a negative trend. Means tweezer bottom, you can go for the buy because it's made a strong support. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप डबल टॉप देखते हैं, सपोज आप देखते हैं कि मार्केट आज सेम हाई और लो के साथ, सेम ओपन और लो के साथ ओपन हुआ, मार्केट ओपन और जो लो है वो उसका सेम है, इट मीन इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड. और आपने देखा कि अगर उसका हाई और ओपन हाई है, वहां से अगर मार्केट खुला है तो इट मीन्स अ नेगेटिव ट्रेंड. तो जो उसका डबल टॉप डबल बॉटम बना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको देखें कि डबल टॉप डबल बॉटम कैसा बना है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड बन सकता है. तो यहाँ अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमने देखा कि एक डोजी बना है इस बार. कल हमने देखा डेली बेसिस पर जो कल का मार्केट बंद हुआ है उसने डोजी बनाया है. इट मीन्स मार्केट इज इनडिसिसिव. यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो इनडिसिसिव है, अभी क्लियर कट नहीं है, राइट. वहीं अगर हम देखें जो हैंगिंग मैन की मैंने आपको बात की थी, यहाँ अगर आप देखेंगे दैट इज ऑन 10 मार्च को आपने देखा था हैंगिंग मैन बना था, और इस हैंगिंग मैन की वजह से हमने देखा मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गया, राइट. दिस इज अ हैंगिंग मैन. अगेन यहाँ पर हमने देखा 25 तारीख को, 25 फरवरी को, 25 फेब, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर. और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुआ 26 फरवरी को. तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द कैंडलस्टिक. अगेन ऑन 16 फेब when the market made a high of 15,431, अगर आप देखेंगे 16 फेब को, यहाँ पर हमने ब्लैक कैंडल देखा है एक, इज अ 16 फेब, दिस इज अ काइंड ऑफ डोजी. मार्केट बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली एंड सडनली वी स्पॉट डोजी ऑन 16 फेब एंड वी सॉ दैट मार्केट इज रिवर्स फ्रॉम द पॉजिटिव ट्रेंड एंड कंटिन्यूअसली वी सॉ अ नेगेटिव ट्रेंड इन द निफ्टी. और आप देखेंगे उसके बाद से मार्केट नीचे ही आता हुआ दिखाई दे रहा है. इट मीन्स कि जो हमारा चार्ट्स का जो स्पॉट है या फिर जो हमारे जो कैंडल स्टिक्स है उनका क्या वैल्यू है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. आप देखेंगे एक हमने यहाँ पे डॉजी अगर हम देखते हैं, हम थोड़ा प्रीवियस जाते हैं तो डोजी बना था 28 जनवरी को. उसके बाद हमने गिरावट देखी, बट सडनली हमने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल स्टिक देखा. इट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ, यू कैन से इंगल्फिंग साइन ऑफ, और डोजी की वजह से मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ यहाँ पे. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव बना है. वहीं अगर हम देखते हैं 20 जनवरी और 21 जनवरी के कैंडल स्टिक्स को, तो ये एक डार्क क्लाउड कवर की तरह बना है. एक दिन बुलिश कैंडल बना, अगले दिन बियरिश कैंडल बना, और बियरिश कैंडल ने पिछले दिन का जो 50% था उसके नीचे ऑलमोस्ट क्लोज किया.
तो उसके बाद आपने देखा कि सडनली जो फॉलिंग था वो मार्केट में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और मार्केट काफी करेक्ट हुआ। तो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कैंडल स्टिक का चार्ट बन रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन इफ यू सॉ 13 जनवरी कैंडल, दैट इज अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन। उस हैंगिंग मैन के बाद आपने देखा मार्केट एक रेंज में अटक गया और वहां से गिरावट देखने को मिली। तो जब भी हैंगिंग मैन काइंड ऑफ थिंग बनेगी या ये जो कैंडल स्टिक्स बनेंगे तो इनको स्पॉट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको स्पॉट कर लेते हैं, इसमें आप स्पॉट करने में एबल हो जाते हैं, तो आप इजीली मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो शो करते हैं, ये शोज करते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसा है, हाउ इज द मार्केट ट्रेंडिंग, हाउ इज द मार्केट प्लेटफॉर्म, हाउ इज द मार्केट details, and how the people are working on it. So this is a very important tool where you can use this candlesticks pattern. So candlesticks are very important while using technical charts. Other tools are here also, but we will arrange again a workshop for advanced kind of thing. This is the basic we conduct today, कि यहाँ पर आपको जो बेसिक में कैंडल स्टिक को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैंडल स्टिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक हमको कैंडल स्टिक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बाकी टूल्स को नहीं यूज कर पाएंगे। तो कैंडल स्टिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैंडल स्टिक्स को हम कैसे वॉच करते हैं, हाउ वी आर सीइंग कैंडल, हाउ वी आर प्रिडिक्ट द कैंडल, एंड हाउ वी स्पॉट द कैंडल। The spotting of the candle is very important, where we spot the candle and how it's react and how we take our position. So whenever you are able to spot the candle and you are able to work on the candle, then you can easily trade in the equity market or commodity market or in currency market. So whenever you use this technical chart, you first to try to analyze the market trend, and secondly you can try to find out the candle spot of the candle, where you are finding the spot of the candle, and try to check your performance कि आप जो कैंडल को स्पॉट किया है उसका क्या रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। So now Q&A, this is from my side. कोई आपका query हो तो you can share on the chat box. We have an email ID. If you want to check, you can share your queries on research@ifl.com. So देखिए काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, काफी सारी क्वेरीज हैं। सो जो एडवांस टूल्स हैं लाइक पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं, उसके लिए हम अगेन वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर इज इट नॉट पॉसिबल टू कवर द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। वी कैन complete this technical in 2 parts. This is the basic, and in next week we'll arrange advanced technical analysis workshop where you can find out our complete patterns and the value of trend line patterns and very important technical tools. So हम जो next workshop होगी उसमें हम वो सब technical tools के बारे में, technical patterns के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक था कि जो कैंडल स्टिक्स है इसको हम कैसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं, हम किसको कैसे समझ सकते हैं। तो अगेन हम देखते हैं, अभी क्वेरी है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट शोज दैट द ओपन पोजीशन इन द एक्सचेंज, कि ओपन पोजीशन कितना लोगों का यहाँ पर है। तो इट शोज नॉट शोज दैट कि ये बाय है या सेल है, बट इस टोटल शोज द टोटल पोजीशन। इस टोटल पोजीशन में जो ट्रेंड है वो कैसा रहेगा। इन टोटल पोजीशन में जो बाय और सेल की पोजीशन कितनी है, मतलब टोटल पोजीशन शो करता है, बाय सेल की पोजीशन नहीं आता है इसमें। तो ये शो करता है कि पार्टिसिपेशन कितना है इसमें। तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि, और प्राइस भी अगर बढ़ रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि जो ट्रेंड है वो कितना पॉजिटिव है। तो ये हम चेक करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट है तो आप एक्सचेंज की वेबसाइट से ले सकते हैं, आप आईएफएल की वेबसाइट से आपको मिल सकता है, आईएफएल की जो टेक्निकल टूल्स है वहां से आप ले सकते हैं।
तो कहीं से भी आप ओपन इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट को चेक करना। आप कोई भी डेटा डाउनलोड करेंगे एक्सचेंज की वेबसाइट से, तो वहां से आपको उसका जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। आई होप दैट कि आपको जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है आपको कुछ डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्योंकि दिस इज आर बेसिक टेक्निकल वर्कशॉप। और टेक्निकल इज अ वेरी नॉट अ रॉकेट साइंस। ये आपको देखना पड़ेगा अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं इसके ट्रेडिंग में, क्योंकि विदाउट टूल, जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए हम गियर का, ब्रेक का, रेस का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमको करते हैं जिस तरह हम उसको करते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट को यूज करने के लिए हमको ये बहुत देखना बहुत जरूरी है कि हम क्या टूल यूज कर रहे हैं। टूल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट टूल के लिए हम नहीं कर सकते। जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ दैट इज अ टेलीकोट। आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये वेंडर का है। इसके अलावा काफी सारे स्टॉक सॉफ्टवेयर जैसे फाल्कन है, आप उसको ले सकते हैं, वो काफी कम रेट में आपको मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। फाल्कन है, और ये टेलीकोट है, TELEQUOT, टेलीकोट सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार होगा उसमें हम जो टेक्निकल टूल्स हैं लाइक MACD, RSI, जो हमारी पैटर्न्स हैं उसको हम कवर करेंगे। जो हमारा उसमें होगा, हम उसमें जो हमारे पैटर्न्स बनेंगे वो हम कवर करेंगे। तो कुछ एडवांस चीजें हम उसमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। डोजी, देखिए डोजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पर स्पॉट हो रहा है। अगर डोजी बना है और उसके नेक्स्ट डे का जो कैंडल है उसने अगर उस डोजी का हाई और लो ब्रेक किया है, अगर डोजी का हाई ब्रेक हुआ है इट मींस इट साइन ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड, अगर उसका लो ब्रेक हुआ है इट मींस अ नेगेटिव ट्रेंड। तो डोजी मतलब इनडिसिसिव। तो डोजी बनने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अगला कैंडल बना है वो कैसा बना है, वो पॉजिटिव बना है और नीचे बना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ट्रेंड बना है डोजी के बाद जो कैंडल बना है वो पॉजिटिव है या कैंडल नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव कैंडल बना है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बना है तो नेगेटिव बनेगा। डबल बॉटम, डबल टॉप के लिए अगर डबल बॉटम आपको दिखता है इट शोज कि यहाँ से आपका मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि डबल टॉप इट शोज दैट कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। डबल डबल टॉप मींस इट्स अ पॉजिटिव, डबल टॉप मींस कि रेजिस्टेंस ट्रेंड, कि अगर मार्केट ने डबल टॉप बनाया कि मार्केट ने वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। डबल टॉप डबल बॉटम जो है ये आप इसको फाइंड आउट करते हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि डबल टॉप बनाया है तो इट्स रेजिस्टेंस, और डबल बॉटम बनाया है नेगेटिव ट्रेंड। डोजी में आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, बट अगर आप जो नेक्स्ट उसके बाद जो कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें नया पार्टिसिपेशन कैसा आया है। पॉजिटिव आया है मार्केट, बुलिश मार्केट बंद हुआ है और वॉल्यूम बढ़े हैं, इट मींस अ पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर बेयरिश मार्केट बंद हुआ है और वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं कि आगे मार्केट डाउन हो सकता है। तो डोजी के बाद जो कैंडल बना है उसका वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट होगा कि जो अगला कैंडल बनाया, क्योंकि डोजी मीन्स कि यहाँ पर काफी लोग निकल गए हैं मार्केट से, तभी मार्केट ना तो ऊपर गया है ना नीचे बंद हुआ है, मार्केट वही रेंज में बंद हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उस कैंडल में जो साइज बनेगा कैंडल का और उसमें जो वॉल्यूम हमें दिखेंगे वो शो करेगा कि जो ट्रेंड है वो ऊपर या नीचे, कितना ऊपर नीचे बना है। वी आर ऑल्सो लाइव इन यूट्यूब। तो आप IFL के थ्रू जाएंगे तो यूट्यूब पर आपको ये सेशन लाइव मिलेगा, वहां पर आप ये कॉपी कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, आपने होली के फेस्टिवल में इस हमारे सेशन को ज्वाइन किया। डेफिनेटली हमें लगता है कि आपको यहाँ से काफ़ी मिलेगा। बाकी हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच।